जुगाद सच भी सच नानक होसी भी सच तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे सागे बात डुबदा पत्थर लीजै प्रणवत नानक सुन मेरे सागे बात डुबदा पत्थर लीजै। कपत पावन भगत वत्सल दीन अते दुनिया दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दे पावन पवित्र मुबारक चरना दी हाजरी भर रगे हाजरीन गुरु खालसा सब संगी जनों सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी बड़ी महान अपर अपार कृपा मिगरामत बख्शिश होई के भाई जो के समा होया गए गुरबाणी दी कथा विचार दे नाल जुड़न दा बड़े प्यार दे नाल गुरु के संगत ने सच्चे पातशाह जी दे पावन चरना विच बैठ कर गुरबाणी कीर्तन दा आनंद माणिया गए। उस तो उपरंत गुरु साहिब जी दे पावन चरना दे विच अरदास बेनती हुई गए। फिर महाराज जी ने कृपा करके मुखवाक दी दात बख्शिश की गई। सो आओ गुर संगत जी हुण अपनियां मनोबिरतियां नूं एकाग्र करके कुछ समा गुरु घर दी पवित्र विचार दे नाल जुड़िए। विचार दी प्रारंभता तो पहला आप जी करो कृपा श्री गुरु महाराज दियां दे पावन चरना दे उपर सीस झुकाओ ते गुर संगत दी बड़े अदब दे सहित उचारण करो। आखो जी वागे गुरु जी का खालसा वागे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा दा सदका जो आपां पवित्र गुरबाणी की लड़ीवार विचार करते आ रहे गां महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करके
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ 160 ਅੰਗ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੌੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਵਾਰਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗਵਾਰਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰੰਗ, ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਗੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਲਾ ਗੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੂਨਾ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਂਝ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਪ ਦਾ ਅਕਰੀ ਅਰਥ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਕਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਰੂਪ ਅਗੇ ਰੰਗਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਸਭ ਸਹਿ ਲੰਗਾ। ਪੌਣ ਦਾ ਅਕਰੀ ਅਰਥ ਕੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਆਪ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਦਾ ਅਕਰੀ ਅਰਥ ਕੇ ਅੱਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸਹਿ ਲੰਗਾ। ਸਹਿ ਲੰਗ ਦਾ ਅਕਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਲੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ।
सतगुरु अमरदास महाराज कहते ने गे मेरे परमात्मा तू आप कृपा कीता पौन पैदा कर दिती, वैगुरु आप कृपा की पानी पैदा कर दिता, आप पैदा कृपा की ते अग पैदा कर दी। ते गे मेरे परमात्मा इन्हां नूं पैदा करन तो बाद तू इन्हां दा इह सुभाव बना दिता भी कि किसी जगह के उपर इकट्ठे नहीं रह सकते। खालसा जी आप जी ने ध्यान देना, महाराज साहब जी कहने लगे तू इन्हां दा सुभाव है बना दिता कि किसी जगह ते इकट्ठे नहीं रह सकते। जिस जगह के उपर पानी गए उत्ते अग नहीं रह सकती, लेकिन जिथे अग गए उत्ते पानी का की काम। महाराज साहब ने आख्या इसे प्रकार कि मेरे परमात्मा इन्हां दे विच तू एक दूजे के प्रति विरोधी तत्त पैदा किया, एक दूजे के विरोधी ने। पर गे मेरे वैगुरु तेरी करामात ये गए कि जिथे इन्हां दे अंदर एक दूजे के प्रति तू विरोध पैदा किया, इकट्ठे नहीं रह सकते, कि मेरे परमात्मा उत्ते तू कृपा करके इन्हां नूं अपने आप बन के इकट्ठियां भी रख दिता है। इस मनुख के तन के अंदर 5 तत्त ने ते इन्हां 5 तत्तां दा आपस विच कोई मिलाप नहीं। ये आपां सबनां नूं पता कि मनुखी शरीर के अंदर गुरसंगत की सब तो पहला तत्त जिहड़ा कि हो गया मिट्टी का। मिट्टी का एक तत्त कि शरीर के अंदर, क्योंकि असल में ये जिहड़ा तन बनया गया ये बनया कि मिट्टी का गया, शरीर मिट्टी का बनया। इस करके विद्वान कहते ये मिट्टी का तत्त है। इस तो अगे जाके इस शरीर के अंदर एक अग्नि का तत्त है, अग का तत्त। असी अपने तन नूं हथ लाइए तो शरीर गर्म रहिंदा है, तत्ता रहिंदा है, थोड़ा जिहा गर्म रहिंदा है, खाधा पीता इस बंदे का हजम हुंदा है। ये सारा कुछ इस करके हुंदा क्योंकि परमात्मा ने इहदे अंदर अग्नि का तत्त भी पा दिता है, अग का तत्त पा दिता है। इस तो अगा तीजे नंबर ते जिहड़ा तत्त है विद्वान कहते ने वो पानी का तत्त है। मनुख दीयां अखां गिल्लियां ने, असीं मूँह खोल के वेख के मूँह गल्ला गए, ये पानी का तत्त है। चौथे नंबर उपर परमात्मा ने कृपा की गुर संगत दे इहदे अंदर हवा का तत्त भी पा दिता है। सवास असीं लै लगेगा ये हवा के, ये हवा का तत्त है। ते 5वां तत्त जिहड़ा है वो परमात्मा ने कृपा करके पाया आकाश का। ते विद्वानां ने इहदा अर्थ किया कि स्पेस। आखर लगे साडियां नाड़ां दे विच खून गर्दश करदा है, तुरदा है, ते जे अगे थोड़ी थोड़ी स्पेस गए तां करके ये खून तुरदा है। अगली गल ये जे स्पेस गए तो मेरी आवाज़ तुहाडे तक आ रही है, जे अंदर स्पेस गए तो साडा छकिया होया प्रसादा किसी जगह ते जाके टिकदा गया, पीता होया पानी किसी जगह ते जांदा गया। कहंदे कि 5 तत्त ने परमात्मा ने जिहड़े कृपा करके इस बंदे दे अंदर टकाए ने। हुण आप जी ठीक है इहनूं होर समझ लैना, जिस वेले इस मनुख की मौत होंदी आ असल विच मरदा कुछ नहीं, ये 5 तत्त जिहड़े ने अपने मेन तत्तां ते समा जांदे। असीं सब तो पहला इस बंदे की नबज वेखने, जदों कोई चढ़ाई करदा है ना उहदी नबज वेखी जाती है, तो वेखण वाला बंदा कहन लगा हुण इसकी नबज रुक गई है। कहंदा अखरी अर्थ ये होया भी जिहड़ा आकाश का तत्त सी वो विचों निकल गया, नबज रुक गई आ, आकाश का तत्त विचों निकल गया। जिन्ना चिर ये जिंदा सी उन्ना चिर इहदे अंदर स्पेस गए। तुसीं मूँह में पानी पाउंदे सी इहदे पेट तक चला जांदा सी, मूँह में बुरके पाउंदे सी अंदर चला जांदा सी, पर हुण अंदरों स्पेस खत्म हो गई आ। लोग चमचे नाल उहदे मूँह में पानी पाउंदे ने पर वो बाहर डुल जांदा, आकाश का तत्त निकल गया। इसे करके तां विद्वानां ने इत्थों तक आख्या, गुरबाणी भी कहंदी गए कि मनुख संसार अंदर जिंदा बस उन्ना चिर रह सकता है जिन्ना चिर इहनूं वाहिगुरू रखना चाहुंदा है। कबीर साहब का एक प्यारा बचन कि वह कहते ने उदा संसार के अंदर रहन वाला एक वैद एक डॉक्टर अपनी जबान तो यह गल कहता है कि मेरे को बहुत सारिया दवाइयां ने, मैं किसी मरदे कोई बंदे नूं जिंदा कर सकना है, लेकिन कबीर साहब जी कह लगे तू उन्होंने तां बचा सकदा है जे रब उहदे विच आकाश का तत्त रहन देगा, ते जे स्पेस रहन देगा ते रब ने कृपा करके तत्त बाहर खिंच लिया, अंदरों स्पेस खत्म कर दी। ते गे भलिया ये दस फिर तेरी दवाई इस बंदे दे अंदर देगी ते किदां देगी। कबीर साहब का एक बड़ा प्यारा बचन है, कहते कबीर वैद कागे
ਖਾਓਗੇ ਭਲਾ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਗਾ, ਭਲਾ ਗਾ। दारू मेरे वस, मेरे कोल दवाइयां ने ते एडियां वड्डियां दवाइयां के मनुख के मूँह च पा दियां, इहदा बचाव हो जाएगा। पर श्री गुरु महाराज ने अगे बदना क्यों कहते नहीं, ये तो वस्त गोपाल की, तो रब की वस्तु मन जब भावे ले खस। जदों रब का दिल करे वो इस बंदे दे कोल इस वस्तु नूं वापस ले ले। ख्याल करना, पहला तत्त इस तन दे विचों निकलदा कि आकाश का। ਤਾਂ करके असीं आख्या नबज रुक गई। उदों बाद लोकां यतन किया इहदे मूँह विच पानी पाईए, पर किसी प्रकार भी पानी जिहड़ा कि इस बंदे दे मुखड़े दे विच पाया नहीं जा सकिया। उहदा आप जी ने बड़ी एकाग्रता नाल समझना। असीं एक इदां दे महापुरख दा जीवन पढ़िया कि जिस महापुरख दे कोल एक ताकत कह लो जां इदां कह लो परमात्मा दी दित्ती कोई एक कला सी। उस महापुरख के जीवन में यह लिखा गया कि जदों किसी बंदे दे तन दे उपर सप डंग मार जाता सी ना, ते रब ने कृपा करके उन्होंने ये ताकत दे दी कि वो उस बंदे दे उस अंग नूं अपने मूँह च पा के चूस लैंदा है, ते इहदे नाल सप दा जहर जिहड़ा कि उन्होंने बाहर खिच दिंदा है। फिर समझना ये ढंग सी उहदे कोल। ते बड़े लोगों ने आख्या, कह लगे इहदे कोल तां बहुत ज़्यादा दात एक रब दी दित्ती। किसी बंदे दे तन उपर सप लड़ जाए ते उस बंदे दे उस अंग नूं मूँह विच पा के चूस ले ते सप दा जहर खिच दिंदा है वापस। पर उहदा जीवन लिखण वाला महापुरुष कहंदा सच्ची गल इह आ कि उस महापुरुष दी अपनी मौत भी सप लड़न वाली हुई सी। कारण इह बनिया भी सप उस जगह ते डंग मार गया कंड दे विच जिथे उहदा अपना मूँह जा नहीं सी सकदा, उत्थे उहने डंग मारिया, हुण अपना मूँह जा ही नहीं सकदा ते जहर किदां चूसे। महाराज ने आख्या परमात्मा तेरी कला के, ये तेरा कौतक के, तेरी रचना के, तेरा एक ढंग के। जदों तोरा दिल करदा कि उस वेले तू लजाना है, क्योंकि तेरे रंग ने। महाराज साहब जी ने जो सानू अध बतन समझाया कि उस सब तो पहला इहदे अंदरों आकाशी तत्व नूं किता के हुण इस बंदे दे अंदर जगह खाली रह नहीं गई। इस वैद हकीम की दित्ती कोई दवाई जां साडे हथों चमचे नाल पाया होया पानी इस बंदे दे अंदर जाए ते किदां जाए। आख्या आकाश दा तत्त खत्म हो गया। उस तो बाद दुनियावी जीव उस बंदे दे शरीर नूं हथ ला के वेखदे आ। जदों हथ ला के वेख गए ते तन ठंडा हो गए, आपां कहने गुण ते ठंडा हो गए। विद्वाना ने इहदा अर्थ किया, इसका मतलब ये होया कि इस बंदे दे शरीर दे अंदरों अग दा तत्त भी खत्म हो गया। अग सी दे अंदर तत्त सी हुंदा, तां करके शरीर गर्म रहिंदा है। हुण अग दा तत्त इहदे शरीर विचों निकलिया ते अपने मूल तत्त सूरज अंदर जाके समा गए, तां करके गुरसंगत दी इहदा तन जिहड़ा कि वो ठंडा हो गया। विद्वान कहंदे ने उस तो बाद असीं तीजे नंबर दे उपर इस बंदे दा गुरसिख संगत दी बड़े प्यार दे नाल मूँह खोल के वेखदे आ। ते मूँह खोल के वेखण वाला, अखां खोल के वेखण वाला बंदा कहंदा हुण मूँह सुक गया, अखां भी सुक गईयां ने। इहदा मतलब भी इस बंदे दे शरीर दे अंदरों पानी दा तत्त भी खत्म हो गया, जिंदा करके गिला सी वो भी खत्म हो गया। चौथे नंबर ते वेखण वाला बंदा आखदा कि इस बंदे दे श्वास होने भी बंद हो गए। इहदा मतलब इस जीव दे गिरदे शरीर दे अंदरों हवा दा तत्त जिहड़ा कि वो भी खत्म हो गया। ते हुण पंजवां तत्त पिया रह गया शरीर, एक है मिट्टी। भावें इहनूं दफन कर देगे, भावें संस्कार कर देगे, इन्हें मिट्टी हो जाना है। धन गुरु अमरदास महाराज अज ये वचन कह रहे ने कि मेरे परमात्मा ये सारे दे सारे रंग जिहड़े ने ये तेरे ने, तेरी रचनावां संसार तेरे रंग ने। इन्हां पंजां तत्तां नूं तूं पैदा कीता है ते उंज इन्हां दा आपस विच विरोध गए। किसी जगह के उपर मेरे वाहिगुरू ये पंजे तत्त कट्ठे नहीं रह सकते, पर बंदे के शरीर अंदर अंदर उन्हें कट्ठे रखे आ। मनुखी शरीर के अंदर वाहिगुरू पानी भी गए, मनुखी शरीर के अंदर अग्नि भी गए। पानी ते अग्नि इकट्ठे रहंदे ने, ना पानी अग दे तत्त नूं मारदी पई गए ते ना अग पानी दे तत्त नूं सुकावदी पई गई। महाराज साहब जी ने आख्या ये तेरे रंग ने। हुण इहनूं फिर समझना
परमात्मा नूं असीं किद्दां जान सकांगे? वो बहुत वड्डा है। परमेश्वर दीयां करामातां साडी समझ विच नहीं आ सकदियां। खां किसी जगह ते दुनियावी किसी लय बंदरिश बंदे दा शरीर तैयार कीता हुंदा ते असीं कह सकदे सां कि बाहरों लिया के तत्त ये सारे दे सारे इस मनुखी तन दे अंदर टका दिते ने। पर कमाल दे इस गल दी गए कि परमात्मा किरपा करके इस बच्चे दा जन्म मां दे उदर अंदर नूं पैदा करदा गए। ते कई बार सोचीदा है कि परमात्मा उस उदर दे अंदर ये मिट्टी का तत्त कित्थों लिया के टका रहा है? वो किहड़ी करामात गए जिहड़ी उदर दे अंदर उस मिट्टी के तत्त नूं लिया रही है ते जिहदे नाल सजीव दा शरीर बन रहे। धन गुरु अमरदास महाराज आखण लगे, मेरे वाहिगुरू ये गल वड्डी गए, मनुखी समझ तो बाहर ही गए। ये मेरे परमात्मा तो इन्नी करामात वरताई, ये गल किसी बंदे की समझ विच आई नहीं अजे तक कि तू किहड़ी जगह तू इन्हां तत्तां नूं लिआउणा है, किस ढंग दे नाल उधर दे अंदर मेरे परमात्मा इन्हां तत्तां नूं इकट्ठियां करदा है ते इन्हां तत्तां नूं इकट्ठियां करके इस मनुखी जीव दा शरीर जिहड़ा कि उहनूं पैदा कर देना, उहदी रचना रच देना कि उहनूं बना देना कि ये सारा कार जिहड़ा कि आम मनुख की समझ तो बाहर गए। हुण चलो आपां नूं इस गल दा सबना नूं पता कि गुरबाणी इस गल नूं मनदी गई कि मां बाप दे मिलाप तो ही बच्चे का जन्म होंदा है। साइंस भी इहनूं मनदी गई, पर बाणी पढ़दियां एक दिन मन अंदर ये पुरना पैदा आया भी चलो अज तां ठीक गए भी मां बाप का मिलाप होया ते अगे बच्चे का जन्म होया, पर सब तो पहला जिहड़ा बंदा उन्हें पैदा किया वह कितों पैदा होया? सब तो पहला भी तो कोई इस धरती पर उन्हें पैदा किया ही होएगा ना। सब तो पहला औरत पैदा हुई कि मर्द पैदा होया, और उस तो बाद उस तो पहला उन्हां दा मिलाप ते नहीं, पर आखिर उन्हां दा जन्म होया ते किद्दां आया? गुरबाणी कहंदी कि ये चीज़ां बंदे दी समझ तो परे ने। इसे करके अज महाराज आखण लगे, रब्बा ये तेरे रंग ने। धन गुरु अमरदास महाराज कहते तेरे रंग ने। हुण अगां इहनूं होर समझो, आपां दरखत वेखने, एक दरखत नूं फल लगा गए, उस फल दे अंदर बीज गए ते बीज विचों अगे पौधे पैदा होए, दरख्तां विचों बीज पैदा हो रहे ने, बीजां चों दरख्त पैदा हो रहे ने। पर आखिर किसी जगह ते जाके तां मनना पेगा कि सब तो पहला भी कोई पौधा उन्हें पैदा किया ही होएगा ना। जे सब तो पहला पौधा पैदा होया तो फिर मन ये सोचता भी उनका बीज कित्थों आया? तो गुरसंगत जी जे सब तो पहला बीज पैदा होया तो मन ये सोचता भी फिर बीज आया कितों? पौधा पैदा हो गया तो उनका बीज कित्थों आया? जे बीज पैदा होया तो बीज तो पौधे नाल लगदा, फिर वो बीज कित्थों आया? ये एक गुंजल है। महाराज साहब जी ने पावन बाणी च आख्या, सच गल ये गए कि मेरे परमात्मा ये तेरे कौतक ने, इन्हां कौतकां नूं मनुख समझ नहीं सकता। ये मेरे परमात्मा ये समझण तो परे ने, तेरे रंग ने। धन गुरु अमरदास महाराज अज इसे करके बतन करदे, एक सते सब रूप के रंगा। इन्हां चीज़ां दा जवाब महाराज ने पहली पंक्ति दे के आख्या, मेरे वाहिगुरू ये सारा कुछ तेरे विचों ही पैदा आया, तू खुद ही इन्हां नूं पैदा करन वाला है, तो खुद पैदा करदा इन्हां नूं। ये सारे दे सारे तेरे कौतक ने, सारे दे सारे तेरे रंग ने, ते इन्हां रंगां नूं पैदा करन वाला तू आप है। पर हे मेरे मालिक जी, अगे तेरे चरनां विच अरदास के कि पौण पानी बैसंतर सब सह लंगा, कि मेरे वाहिगुरू उंज दुनियावी तौर ते पानी दा ते अग दा आपस विच कोई मिलाप नहीं। सह लंगा दा आखरी अर्थ कि मेरे वाहिगुरू तो मनुखी शरीर अंदर एक क्रिया कर दी, करामात वरता दी पे दे शरीर अंदर पानी ते अग दा तत्त तो इकट्ठिया ही चका दिता गया, एक जगह ते चका दिता। मनुख अंदर पानी का तत्त भी गए, दे अंदर अग का तत्त भी गए। उन श्री गुरु महाराज ने पावन बाणी च इत्थों तक बचन आख्या, धन गुरु नानक महाराज के जीवन की चलो एक साखी गए, पुरातन जन्म साखी दे करते ने लिखे, बड़ा कमाल का बचन। आपां उन्होंने थोड़ा जिहा समझना है कि उनके रंग की ने। पुरातन जन्म साखी का करता ये बचन लिखता है, उन्हें इलाके का जिक्र तो नहीं किया, पर भाई बाले वाली जन्म साखी चो एक प्रसंग पढ़ने वास्ते मिलिया कि गुरु नानक महाराज जी गए, किरपा दे सागर महाराज जी दुनिया का भला करने वास्ते निकले, दुराडे चले गए।
ते सच्चे पातशाह जी एक पिंड दे विच गए। महाराज सच्चे पातशाह ने वेख्या कि पिंड दे सारे लोग जिहड़े ने उन्हां दे चेहरे बड़े उतरे हुए हैं। बाबा जी पिंड तो बाहर चले गए, खेतां चले गए, खेतां च भी जिहड़ा बंदा आवे उहदा चेहरा उतरिया होवे। एक किसान अपने खेत विच आया, महाराज ने बड़े प्यार नाल उन्होंने सवाल करके पूछया कि असीं तुहाडे पिंड च भी गए, लोकां दे चेहरे उतरे हुए आ। महाराज साहब ने आख्या जे मैं खेतां च आया तेनूं वेख्या ते तेरा भी चेहरा उतरिया होया, तू किरपा करके दस सकना कि तुहानूं सबना नूं इह की होया। उन्हें बाबे दे चरणां विच हत्थ जोड़ के बेनती करके आख्या सतगुरु नानक देव जी, जां जिस ढंग नाल भी उन्हें आख्या महापुरखो इस करके साडे सबना दे चेहरे उतरे ने कि साडे इलाके विच एक महापुरख गए, उन्हें सानू एक गल दस दित्ती आ कि हुण कई वरे मीह नहीं पैना, 15-16 साल मीह नहीं पैना, ते चेहरा साडा इस करके उतरिया कि जे इन्ने साल मीह ना पिया ते फसल कितों होएगी। इकल्ले फसल की गल नहीं, नाल घाह दाणी की भी गल आ। मतलब धरती चो कुछ ना पैदा आया ते मनुख की काट के पशु की काट के सबना की मौत हो जाएगी। बाबे ने खस के आख्या, कहन लगे तू इदां कर, अपने घर अंदर जा, अपने बलद लैके आ, नाल महाराज ने आख्या बीज लैके आ, जे रब चाहे तो सवेर तक ही तेरी फसल पैदा हो जाए। पुरातन जन्म साखी दे करते भाई बाले की जन्म साखी च लिखे कि वो पहला जावे ना। श्री गुरु नानक महाराज ने जामनी भर के आख्या मैं गवाह हाँ, जे तेरे बीजे कोई दाने खराब हो जान ते ये दाने तू मेरे तो ले ले। उन्हें आख्या ना बाबा एवें जिन्ने दाने पावां वो भी खराब ही हो जाने, उदा उहदे नाल महीना मेरे टब्बर दा लंघ जाना है। महाराज साहब दा बचन मन्निया, चला गया पिंड गया, पिंड वालियां नूं जाके सारी घटना दसी। सारी घटना दसन तो बाद जदों तुरन लगा तो कुछ लोगों ने मजाक भी किया, इदा किदां होंदा है, पर उन्हें सतगुरु नानक महाराज के बचना ते पहरा दिता। बाबे के बचना ते पहरा देकर खेत आके खेत नूं वाया ते दाने जड़े सन उन्होंने दा छट्टा दिता, बीज दिते, आप घर चला गया। महाराज साहब ने आख्या असीं इत्थे बैठे हाँ, तो ख्याल कर 2-3 दिनों के बाद वाहिगुरू कृपा करेगा ये दाने धरती विचों निकल आउणगे। महाराज साहब जी उहदे खेत बैठे उन्हें सवेर तो आ जाना, शामां तक बाबे के चरणों में बैठे रहना। वाहिगुरू ने कृपा की, 2-3 दिनों के बाद वो सहजे सहजे सूइयां धरती चों निकल आईयां, दाने पैदा हो गए, बीज उग पे। ते जदों बीज उग पे सारे लोग वेखण वास्ते आए कि वो कौन बंदा गए जिहड़ा इहदे खेतां विच आया ते उन्हें आ कर्म कर दिता गया। महाराज साहब जी बैठे, सारे पिंड ने आके मत्था टेकिया। धन गुरु नानक महाराज ने सारे पिंड की फसल बजा दी ते आप उत्थे बैठे रहे। कहते ने कि जदों महाराज सच्चे पातशाह उत्ते बैठे रहे, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह उत्ते बैठे रहे, गिच गिच फसल हो गई। ते महाराज साहब जी ने एक दिन इन्होंने आख्या तुहानूं रब दा कौतक विखाईए, परमात्मा इन्नी समर्था का मालिक है, जे रब चाहे तो वह अग के उपर भी महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या चंगी भरी हरियावलता पैदा कर सकते। उन्हें आख्या दसो जी, पुरातन जन्म साखी का करता लिखता है कि बाबे ने खेतों के अंदर जाके जिहड़ी बीजी कोई फसल सी उनका एक बूटा पुटिया ते जिस जगह तो उस बूटे नूं बाहर कढ़िया, थल्ले लोग ही वेखदे उत्तों एक अग की लाट निकलती पई। अग की लाट, वो सारे हैरान होए, हैरान होके महाराज नूं कहण लगे सतगुरु सानू ये नहीं समझ आई, थल्ले अग मचदी पई गए, उत्ते हरियावलता गए कि गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह अग के उपर हरियावलता किवें पैदा कर दित्ती परमात्मा ने। ते महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या ये उहदे कौतक ने। याद रखो कली इसे जगह ते नहीं, बाबे ने आख्या दुनिया अंदर जिन्नी वनस्पति गए सारे दे सारी लकड़ दे अंदर अग भी गए। कोई लकड़ इदां दी गए जिहदे अंदर अग ना होवे, सारी लकड़ अंदर अग गए। पर महाराज साहब ने आख्या वेख दुनिया अंदर विच के लकड़ दे अंदर अग गए, अग होने के बावजूद भी वाहिगुरू लकड़ विचों दुनिया नूं हरियावलता देई जांदा है। असीं जिन्नी फसल खेतां विच बीजदे ये सारे दी सारी महाराज साहब ने आख्या हरियावलता दे रखी गए। धन गुरु अमरदास महाराज अज यही तो कहते ने मेरे परमात्मा ही तो तेरे रंग ने, ही तो तेरे कौतक ने। यही तो वो गल्लां ने जिहड़ियां बंदे दे समझ विच नहीं आ रही कि मेरे परमात्मा
हीरे मोती बंदे नूं चाहीदे ने, पर तू किरपा करके समुंदर च पैदा कर रखे। चाहीदे बंदे नूं आ, पर उन्हां नूं पैदा समुंदर विच कीता है। यही तां तेरे कौतक ने जिहड़े मनुख दी समझ विच नहीं आ रहे। महाराज साहब ने आख्या तू एक किरपा कीते पौण पानी ते बैसंतर इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं बंदे दे तन दे अंदर इकट्ठियां टका के रखिया गया, इकट्ठियां मिला के रखिया गए। ते नाल महाराज साहब जी ने फिर अगला वचन आख्या, कहते भिन्न भिन्न वेखै हर प्रभ रंगा। धन गुरु अमरदास महाराज कहते मेरे वे गुरु, मैं किस ढंग नाल तेनू ये शब्द समझावां कि मैं संसार अंदर विचरदा होया तेरे इन्हां कौतकां नूं किद्दां किद्दां वेखदा पे। मेरे को समझ नहीं। बाणी विच महाराज ने इसे करके आख्या, चलो एक वचन दास होर कह के फिर अगे संसार अंदर गुरमुखो आपां इदां वेखिए, इदां वेखिए भी जे अमरूद का बीज बीज देगे तो अगे अमरूद ही पैदा होता है, अंब का बीज बीज देगे तो अगे अंब ही पैदा होता है। पर कुदरत की एक कला गए वो महाराज साहब दे कहते परमात्मा कृपा करके ना एक औरत के उदर दे विचों की मर्द नूं जन्म दे दिंदा गए ते मर्द के तन दे विचों की औरत नूं जन्म दे दिंदा। ये उनकी कला गए। महाराज साहब ने तां करके पावन वचन आख्या नारी ते जो पुरख करावे। उन्हें आख्या साहब जी कहते करामात के परमात्मा दे रंग ने, एडे वड्डे रंग ने कि वो कृपा करके नारी दे उदर दे विचों पुरख नूं पैदा करन वाला गए, पैदा करदा पिया गए। अगला साहबा दा वचन के पुरखन ते जो नारी उस दे कोल एडे वड्डे ताकत के वै गुरु वो पुरख दे विचों ही नारी नूं जन्म देंदा पिया गया। नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो नारी। अगे कहते खल मूर्ख ते पंडित करबो। महाराज साहब ने आख्या ये उनकी ताकत के किसी जगह ते मूर्ख बंदा बैठा होवे ते उहनूं विद्वान बना देंदा कि खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगधारी। आखा लगे किसी जगह ते चंगा विद्वान बैठा होवे, कई बारी उस ढंग नाल भी कला मरोड़दा कि वड्डे वड्डे विद्वानां नूं मूर्ख कर छड्डदा कि यही तां उहदे रंग ने, यही तां उहदा कौतक के। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा जीवन यही तां समझा रहे कि जिहड़ा बंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोलों इस करके चोखियां खुराकां खांदा रहा भी महाराज साहब जी कदे वक्त पेगा ते मैं युद्ध विच जाके लड़ांगा। जदों लोड़ पैगी वो रात किले दी कंध टप के भज गया ते जिस बंदे तो आस नहीं की जा सकती सी गुरु ने कृपा करके उहदे तो हाथी का मुकाबला करा दिता। ये तो उनकी कला है। महाराज साहब जी कहते उनकी कला है, ये उनके रंग ने, उन्हें पता नहीं की कर देना है। सच्ची गल ये गुरमुखो, बंदा अपनी जिंदगी अंदर जो कुछ सोचता कि वो हुंदा नहीं। मनुख आखदा है कि मैं इदा कर देना है, पर परमात्मा कहता नहीं तू इदा करन ते तुले, पर सच चेते रख इदा होना नहीं करांगा। वो जो मैं होवेगा वो जो मैं करांगा, रब जो करदा ही हुंदा। इसे करके महाराज ने आख्या ये तेरे रंग ने। मेरे परमात्मा में किस ढंग नाल इन्हां रंगां नूं समझा, किस ढंग नाल तेरे गुणा अवगुणा तेरे गुणा नूं रंगां नूं बयान करां। मेरे कोलों तां शब्द मुक गए ने तेरी कला नूं वेखदियां वेखदियां। मैं तेरी कला नूं बयान नहीं कर सकदा। एक बनस्पति उन्हें वो पैदा कीती आ कि जे पानी ना मिले तो सुक जाती कि एक जीव एक धरती उपर अक वगैरह उन्हें वो पैदा किए, जे मीह पै जाए तो मुक जाते हैं। ये तेरी कला है, तेरी किरत है। मैं किद्दां समझा इन्हां नूं भी तू की कर रहे। एक जीव उन्हें वो पैदा किया कि मच्छी जे पानी दे विचों बाहर निकल आए तो उनकी मौत गए। एक मनुख ने पैदा किया कि जे पानी दे विच चला जाए डुब जाए तो इनकी मौत गए। देखो एक पानी तो बाहर आ गया ता मर गया, एक पानी दे अंदर चला गया ता मर गया। लिख नेको ने कशु को मैं हो जा पैदा किया, भावें पानी दे विच रहे भावें बाहर रहे, दोवां कामां ते जिंदा रहिंदा। ये उनकी कला है। महाराज साहब ने आख्या तेरे कौतक ने, मैं किद्दां तेरे कौतकां नूं समझां, किस ढंग नाल इन्हां नूं बयान करां। मेरे वैगुरू मेरे बयान करन तो परे ने। लकड़ पैदा करन वाला रब है। असीं आम लकड़ वढ के पानी में सुट देईए तो वह तर जाती है, लेकिन चंदन भी एक लकड़ है, जे उन्होंने वढ के सुट देईए वह डुब जाता है तो भी लकड़ी। परमात्मा ने महाराज गुरु अमरदास साहब जी कहते यही तो तेरी कला है ना, यही तो तेरे कौतक ने ना, यही तो तेरे रंग ने।
इन्हां रंगां नूं ते मैं समझ नहीं सकता। एक लकड़ मैं पानी 'ਚ सुੱਟ दिता, वो तर गई, दूजी सुट्टी दी वो डुब गई। हुण मैं की आखां भी इहदे विच की है? ये तेरे कौतक ने, ये तेरी कला है। इसे करके महाराज ने आख्या कि मेरे परमात्मा भिन्न भिन्न वरते हर प्रभ भिन्न भिन्न वेखे कर प्रभ रंगा। कि मेरे परमात्मा मेरे तेरे कौतकां नूं वख वख वेखदा पिया पर कह नहीं सकता। अगे महाराज साहब ने आख्या एक अचरज एक हो गए सोई। महाराज ने आख्या आई तां असरद गल गए, आई तां परमात्मा दा वखरा पुना गए। वखरा पुना ये गए, असरद ये गए कि वो एक गुंदिया होया भी अनेकता दे विच विचरदा पिया है। वो एक है परमात्मा कल्ला ही, पर एक होने के बावजूद भी परमात्मा जड़ा के गुरमुख वो अनेकता दे विच गए, हर किसी दे हृदय अंदर के एक गए। महाराज ने आख्या परमात्मा सब तो पहला तू कल्ला ही सी, पर तू किरपा कीती आ एक दे विचों फिर अनेक पैदा कर दिते। अनेक गए अपने विचों ही तू अनेकता पैदा कीती है। ते जदों तेरा दिल करेगा आख्या फिर एक गए तो फिर तू कल्ला ही रह जाएगा। तू सबना विच विचरण वाला, यही तां असरद कौतक तेरा कि गए तू कल्ला इको ही, पर सबना दे विच विचरदा पिया। हर किसी नूं सवास दई जाना, रोजक दई जाना, जन्म दई जाना, सारा कुछ करी जाना। एक अचरज एक हो गए सोई। ते गुरु अमरदास महाराज ने अगे कह दिता, आखन लगे गुरमुख विचारे बिरला कोई, कोई बिरला गुरमुख गए जिहड़ा वैगुरू इन्हां गल्लां दे लागे जाके इन्हां चीज़ां नूं विचारदा गए, इन्हां दे लागे जांदा ते विचारदा गए। संसार दे अंदर विचरदा आया कि रब ने की कुछ पैदा कर सके, की कुछ पैदा कर दिता है। एक वो मनुख पैदा कर दिते जिन्हां नूं कोई इशारे मात्र गल कह दे ते सारा कुछ समझ जाते हैं। एक वो मनुख मेरे वर्गे पैदा किए, तुसीं विस्तार नाल भी समझा दिओ, कख पल्ले नहीं पैदा। उहदी अपनी कला है, कौतक के। महाराज साहब ने आख्या परमात्मा इन्हां नूं विचारदा कोई गुरमुख बिरला गए। अगे विश्राम दे के रहाओ तो अगे महाराज साहब जी कहते हैं सहज भवै प्रभ सबनी थाई। महाराज साहब ने आख्या मेरे मन सहज अंदर टिक के वेख कदे, एकाग्रता दे अंदर आके वेख कदे, अपने मन नूं एकाग्र करके वेख किते। जदों एकाग्र करके वेखेगा सब थावां ते तेनूं दसेगा। किसी जगह ते उनका स्वरूप बड़ा कोमल के वो फुल बन के बैठा है, किसी जगह ते स्वरूप उनका बड़ा कठोर के वो पत्थर बन के बैठा है, किसी जगह ते उनका स्वरूप इन्ना कोमल वो फुल बनया बैठा है, किसी जगह ते इन्ना कठोर के वो कंडा बन के बैठा। फुल के रूप में जो किसी नूं दुख नहीं देता पिया, बिल्कुल बैठा के प्यार नाल, पर कंडे के रूप में उन्हें इन्ना भयानक रूप धारण किया भी जिसके वजदा है उहदे तन चों खून कढ़ के रखदा। पर महाराज ने आख्या सहज नाल टेक के वेखेगा ना ते टका नाल वेखेगा, तेनों हर जगह तो रब दिसेगा, पर तेनों सहज अंदर आना पैना है, एकाग्रता अंदर आना पैना, टका लभ अपनी जिंदगी। महाराज साहब जी कहते सहज भवे प्रभ सबने थाई। ते अगे महाराज ने आख्या कहा गुप्त प्रगट प्रभ बनत बनाई। धन गुरु महाराज साहब जी कहते परमात्मा मैं तेरे की कौतक बयान करा, इन्नी ज्यादा तू रचना रच दी आ, किते गुप्त के किते प्रगट के। प्रगट का करिए अर्थ जो सानू इन्हां नेत्रां नाल दिसदा है। मनुख देख रहे ने, पशु परिंदे दिस रहे ने, दरखत ते पहाड़ दिस रहे ने, धरती ते आकाश दिसदा पे, ये प्रगट गए। पर गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी कहते करोड़ां जीव उन्हें वो पैदा कर छड़े जिहड़े दिसदे ने, करोड़ां जीव। एक तां दास अगे भी बहुत बार उदाहरण दिंदा हुंदा है कि सियाणे विद्वान कहते ने आपां दही की कौली लेख लईए, उहदे विच उहने बहुत जीव पैदा कीते ने, सानू इन्हां अखां नाल दिसदे नहीं, लेकिन कोई खास यंत्र लईए जो लिख दगे उहदे मुताबक तुहानूं कुरबुल कुरबुल करदे जीव इस दही च दिस पैन, तुहाडा दही खाण नूं दिल ना करे, पर वो नेत्रां नाल नहीं दिसदे पए, वो गुप्त रूप विच ने। पर गुप्त दा आखरी अर्थ संत सिंह मस्कीर ने यह कीता है। वो बड़े प्यार दे नाल बाणी दी ये पंक्ति लैंदे ने कि कई कोट भूत प्रेत सूकर मिरगात, ये उन्हां पंक्ति लई ते आखण लगे जिवें धरती दे उपर कई करोड़ां जीव प्रतख रूप विच विचरदे पए ने ना, इसे ढंग दे नाल करोड़ां रूहां वो ने
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨੇ ਨੇ, ਕਬਾਬ ਖਾਨੇ ਨੇ, ਪੱਬ ਤੇ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਂਝ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਕੰਬਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਦਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ। ਵੈਸੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਲੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਪੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਤੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਘਰ ਹੋਈ। ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਕਰੀ ਅਰਥ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਗਲਾ ਗਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ, ਇਹ ਜਿੰਨ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਜਿੰਨ ਆ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ, ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਖੁਦ ਜਿੰਨ ਬਣ ਗਈ, ਪਿਓ ਜਿੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਨਾ ਪਿਓ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਵੈਗੁਰੂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਨਾ ਪਿਓ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਵੇਖੇ, ਪਿਓ ਵੇਖੇ ਟੀਵੀ ਗਾੜੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਣ ਤੇ ਉੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਵੀ ਜਿੰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜਿੰਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਰਚਨਾ ਰਤੀ ਕੇ। ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨੇ, ਕਬਾਬ ਖਾਨੇ, ਪੱਬ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਜਿੰਨ ਆਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜਦਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਜੂਰੀ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਗਏ ਜਿੱਥੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਅਜੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰਚਨਾ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰਚਨਾ ਆਖਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਚਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹੇ।
इन्हां नेत्रां नाल। सब तो वड्डा गुप्त रूप तां परमात्मा दा अपना ही है ना, अपना ही है। इसे करके महाराज ने आख्या काका गुप्त प्रभ प्रभ प्रगट प्रभ बनत बनाई। परमात्मा कित्थों कित्थों तक तो गुप्त प्रगट रूप में जीव पैदा कर दिते, मैनूं इहदा भी कख पता नहीं। पर नाल मेरे हथ जोड़ के अरदास करके आख्या, कहन लगे वाहिगुरू आपे सुत्तियां दे जगाई। ये तेरी तेरी लीला गए रचना गए कि मोह ममता दे अंदर पै के सारा संसार सुता पिया गए, अज्ञानता दी नींद विच सुता गए। पर कदे कदा तू किरपा करता है भी किसे किसे बंदे सुते हुए नूं जगा देना है। जदों सुता बंदा जागदा है तो फिर पता लगता है ना भी मेरा घर चोरी हो रहा है, फिर वो रोकदा है, सुचेत हो जाता है, काम करता है सारे। इसे प्रकार गुरमुखो दुनिया जड़ी गए को मोह ममता दी नींद अंदर पै के सुती हुई, उन्होंने रब दा ज्ञान नहीं, बंदगी दा ज्ञान नहीं। पर महाराज सब ने आख्या कदे कदा मेरे वाहिगुरू तू किरपा कर दें, किसे किसे सुते नूं जगा देना है, ते जिहड़ा जाग जांदा वा उन्होंने फिर तेरा ज्ञान हो जांदा, फिर तेरी बंदगी कर लग जांदा। जागदा के जिहड़ा वो तेरे नाल जुड़दा है, पर जागदा वो जिन्हों तू आवाज दे के उठा देना। इक ना सुतिया दे आपे सुतिया दे जगाई। फिर अगली तीजी पौड़ी में महाराज किरपा करते हैं, कहते तिसकी कीमत किन्ना ना कोई। महाराज ने आख्या कुंज मनुख परमात्मा की कीमत जड़ी गई वो किसी बंदे नूं पता नहीं, ते ना रब की कीमत कोई पा सकता है, ना उन्हें कीमत किसी नूं पता ते ना उन्हें कोई कीमत पा सकता है। चलो एक होर उदाहरण मस्कीन जी की जिंदगी चो ही उन्हां दा जिक्र अज चल पिया। मस्कीन जी उस वेले ना दिल्ली की धरती ते प्रचार कर रहे सन। ये घटना 84 वाले साके तो पहला दी है। दिल्ली की धरती ते प्रचार कर रहे सन। कुछ निरंकारी पंथ नूं मनण वाले बंदे उन्हां दे कोल आए, निरंकारी पंथ नूं मनण वाले। अज भी पिंडां विच निरंकारी ने, याद रखना गुरबचना निरंकारी उहदी गल। निरंकार दा अकरी अर्थ वैसे हुंदा जिंदा आकार कोई ना होवे, परमात्मा, पर वो बंदे ते बंदियां नूं निरंकारी कही जांदे सन। उंज तुसीं बड़े ध्यान नाल समझ रहे, इस गल नूं भी पढ़ना। साडे धर्म विच दो किताबां लिखियां एक चंगे विद्वान ने, एक दा नाम है कि असली निरंकारी, एक दा नाम है नकली निरंकारी। उन्हां नूं भी सबब बने ते जरूर पढ़िओ। मस्कीन जी दिल्ली की धरती ते सन। गुरबचना निरंकारी उदों इन्हां दा आगू सी, दिल्ली वो विचरिया सी। उस निरंकारी बंदे संत सिंह मस्कीन कोल आए, ते हो सकदा भेजे कोई उंदे आए हुण भी जी एडा वड्डा विद्वान मेरे दरबार विच आ गया ते गल होर बन जाएगी। पहले दिन तो जिहड़े तुहाडे विरोधी बंदे हुंदे ने वो तुहाडे विद्वानां नूं खरीददे। औरंगजेब ने कश्मीर तो ही काम ये क्यों शुरू किया भी इन्हां हिंदुआं नूं मुसलमान बना देंगे। साडे विद्वान कहते उन्हां दिनां विच ना इन्हां दे सारे विद्वान कश्मीर ही रहिंदे सन। कश्मीर ठंडा इलाका, उत्थे रहिंदे सन। उन्हें उत्थों ही काम शुरू किया भी जे इन्हां बंदियां नूं डरा धमका के मैं इस्लाम विच लै आंदा, बाकी हिंदू जगत आपे आ जाए। विद्वानां तो गल चलदी है, किसी कौम दियां जड़ियां बेड़ियां नूं उन्हां विच वड्डे भी वाहिगुरू विद्वान विक जाण ते पा दिंदे। जे चंगे भले रहन ते कौम का बेड़ा बन्ने भी ला सकते, उन्हें सुचेत करना होगा। मस्कीन जी कोल आए ते आके गल आके कह लगे, मस्कीन जी कल नूं ना इस जगह के उपर जिन्हों आपां बुराड़ी ग्राउंड कहने, जिते किसानों नूं कहा गया सी कि तुसीं जाके धरना ला लो, शायद तुहानूं इस गल का नहीं पता होना। अज भी निरंकारियां ने कौम के कंड च छुरा मारन का यतन किया। एक वक्री गल आ भी कौम साडे आगू नूं समझ गए, उन्हें पेशकश की सरकार नूं निरंकारियां ने भी इत्थे बिठा दिओ इन्हां नूं बुराड़ी जिहड़ी ग्राउंड के। ते याद रखना असल विच ये निरंकारियां दे डेरे की एक प्रॉपर्टी है। इत्थे दो गल्लां हो सकदियां सन, जां तां उत्थे बिठाउण तो बाद चारे पासे घेरा पा लिया जांदा ते कैद इन्हां नूं एक जेल दे वांग कैद कर दिता जांदा, जां फिर जदों उत्थे बह जांदे ते उन्हां तो दावा करा दिता जांदा भी ये साडी जगह जाके क्यों बैठे, इन्हां नूं उठना चाहिए। ये दो गल्लां सन। ये इसे जगह के उपर निरंकारी विचरदा पिया सी। आके कह दिता गया कि मस्कीन दी उन्हां नूं कल नूं ना माया दे नाल तोलिया जाना है। साडे गुरु नूं
गुरबत ने निरंकारी तुसी भी उत्थे हाजिर होए। मस्कीन जी ने आख्या भी मैं तो नहीं आवांगा, मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रचारी, उन्होंने घर का प्रचार करने वाला, तो मैं किदां आवां। उन्होंने आख्या चल जे नहीं होना तो टीवी की स्क्रीन पर वेख लियो। मस्कीन जी कहते मैं खेड़ा छडाउण दे मारे आख्या चल टीवी की स्क्रीन पर वेख लवां। वो कहते वेख्या तो नहीं। अगला दिन चढ़िया बंदे फिर आ गए शाम के वक्त। मस्कीन जी ने आके आख्या कह लगे वेख्या तो कह लगे आख्या मैं नहीं वेख्या। आखण लगे साडा गुरु बहुत महान बहुत मकान, असी माया नाल तोले। मस्कीन जी चंगे विद्वान सन, उन्हें पूछा भी किन्नी को माया नाल तोले। आखण लगे 5-10 हज़ार के सिक्के ही होणगे जिन्हां नाल तोले। हस के मस्कीन जी ने आख्या इहदा मतलब यह है भी तुहाडे गुरु की कीमत हुण सिर्फ 10,000 रुपया तय हो गई। 10,000 नाल तुल गया तो 10,000 का ही होया ना। पुराने समय तो लोग इदा ही करते सन, एक चीज तोल के रख ली, बदले च दूजी तोल के दे दी, उन्नी दे दी। आखन लगे इहदा मतलब तुहाडा गुरु जिहड़ा अगे वो 10,000 सिक्कियां दे बराबर अगे, उनकी कीमत 10,000 गए। पर याद रखो मैं जिस गुरु जिस निरंकार के चरणों नाल जुड़िया उस गुरु की कोई कीमत है ही नहीं, उस वाहिगुरू की कोई कीमत नहीं, उस परमात्मा गुरु की कोई कीमत मुल पा ही नहीं सकता। इसे करके महाराज ने बचन आख्या तिसकी कीमत किने ना कोई। अज तक कोई बंदा रब की कीमत नहीं पा सकिया, उनका मुल नहीं दस सकता। अगे महाराज ने आख्या कह कह कथन कगे सब कोई। कुछ महाराज ने आख्या लोग उस रब के बारे कह रहे हैं, अपनी जबान विचों दी कथा की जा रही है, दसिया जा रहा रब बारे, रब की कथा की जा रही, रब नूं क्या जा रहे हैं, पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर जानिया नहीं जा सकता। अगे फिर महाराज साहब जी बतन करते ने गुर शब्द समावे बूझे कर सोई। महाराज ने आख्या भाई ना तो तुसी उन्हें कीमत पा सकते हो, ना उन्हें मुकम्मल तौर पर कथा कर सकते हो। बस मैं यही कहना जिहड़ा शब्द में समा जाता गए वो परमात्मा च समा जाता है, जिहड़ा शब्द नाल जुड़दा गए वो रब विच अभेद गए। शब्द नाल जुड़ना ही परमात्मा नाल जुड़ना है, शब्द विच अभेद होना ही परमात्मा नाल अभेद होना है। अगे फिर महाराज साहब जी अखीर ते चौथी पौड़ी च बतन करते हैं सुन सुन वेखै शब्द मिलाए। हुण ये बतन आप जी ने फिर समझना, सुन सुन वेखै शब्द मिलाए। हर कोई बंदा पहला शब्द नूं सुनदा गया ते सुनन तो बाद अगे बोलिया जाता है। सुनना ही मलाप के रस्ते ते चलना गए, सुनना ही रब के रस्ते ते चलना है। याद रखना जिमें कोई अन्ना बंदा विज्ञानी नहीं ना हो सकता, मनुख जन्म तो ही अन्ना होवे ते वो विज्ञानी नहीं बन सकता, क्योंकि साइंटिस्ट बनने वास्ते हर एक चीज वेखनी पैंदी है। जे वेखी नहीं तो उनकी खोज किद्दां करेगा, वो विज्ञानी नहीं हो सकता। धर्म की दुनिया कहती इसे प्रकार जिहड़ा भोला बंदा गए वो भगत नहीं हो सकता। अज तक तुसीं ये नहीं सुनिया होवेगा कि कोई भोला रब तक चला गया, अन्ना तो चला गया, जिहदे दुनियावी नेत्र नहीं से अगे वाहिगुरू भगत सूरदास वो रब तक चला गया पर भोला नहीं उहदे तक कोई जा सकिया, क्योंकि धुर अंदरों शब्द जिहड़ा अगे वो सुन के प्रगट किया जाता है। सुनना पेगा फिर प्रगट होएगा। जिहड़ा गए कि भोला उन्हें सुनिया ही नहीं, तो जिन्हें सुनिया ही नहीं प्रगट किदा होएगा। धर्म की दुनिया कहती इस करके सब तो पहला दे गिरदे अंदरों शब्द प्रगट करना है तो तेन सुनना पैना, सुना लगातार सुने। इसे करके गुरु नानक महाराज जी के घर अंदर संगत का प्रबंध तां ही किया जाता है भी इत्थे बह के सुने, जिन्ना कोई ज्यादा सुनता है। नाम का अभ्यास करने वाले गुरमुख ने भी इसे करके गल के भी बंदा चौंकड़ा मार के बह जाए, सुचेत होवे ते अपनी रसना दे विचों इन्नी क आवाज़ जरूर कटे जिन्नी इहदे कान सुन सके, जिन्हें इहदे अपने कान सुन। आप ही अपनी रसना चो बाणी पढ़ ते अपनी पढ़ी हुई बाणी नूं आपे सुन। आप अपनी रसना चो वाहिगुरू वाहिगुरू कहे ते कहे होए नूं आप सुन। जिन्ना चिर मनुख सुनदा नहीं उन्ना चिर सुत्ते हुए अंदर सुरत जिहड़ी है वो जाग नहीं सकती, उन्ना चिर वो जागदी नहीं। सुनने वाले ही परमात्मा के घर तक जाते हैं। इसे करके महाराज ने आख्या सुन सुन वेखे, सुन के वेखदा, सुन के वेखदा। कोई बंदा टेढ़े राह ते तुरिया जा रहा, उस राह ते तुरिया जा रहा, जिस राह ते अगे भयानक जानवर बैठा है, शेर वगैरह बैठा है, दूजे बंदे ने दूरों वेख लिया भी ये गलत रस्ते ते जा रहे हैं,
ये मौत के खूह जाके डिग पे, उन्हें दूरों आवाज़ मार दी। जदों आवाज़ सुनी तो सुन के उन्हें उधर वेख्या, जदों वेख्या तो आवाज़ मारन वाले ने इशारा करके आख्या इधर ना जाई, इधर मौत, उदों पिछां मुड़ आया। अगर हुंदा ही बोला तो सुनदा किदां, जे सुनदा ही ना तो वेखदा ना, जे वेखदा ना तो मौत के मूँह जा पैंदा। महाराज ने आख्या इसे प्रकार मनुख उस रस्ते ते तुरे जिस रस्ते के उत्ते अगले पासे वकारां दा खूह है, वकारां दे कुछ डिग पेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर गुरु अपने शब्द के राही इनू आवाज़ मारदा पे, शब्द राही आवाज़ा मारदा, आवाज़ा मार के कहता शब्द राही भी इधर ना दा। महाराज साहब ने आख्या जड़े जड़े शब्द नूं सुन लेंदे ने, वो शब्द की आवाज़ सुन के पिछा भौं के गुरु वाल वेंदे भी मैनू आवाज़ किन्ने मारी। फिर गुरु समझा देंदा भी इधर ना जा, तो फिर नहीं बचाव हो जाता है। पर महाराज ने आख्या जड़े बोलिया समान हो गए ने, शब्द रोज आवाज़ मारदा पर ये सुनते ही नहीं। गुरु का रोज सवेरे कहता आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। गुरु कहता सतगुरु बिना होर कच्ची कह बाणी। गुरु रोज आवाज़ दे के कहता है, पर साडी सुरत बोलिया वर्गी होगी, उधर ध्यान नहीं देती। महाराज साहब ने आख्या सुन सुन बूझे। सब तो पहला सुनिया ही जाता है, बच्चा भी पहला सुनता गया, सुनने तो बाद उन्हें एक अगों इदां दी अवस्था बनती जदों उन्होंने सुनिया सुनाई देन लग जाता। असीं एक पासे खड़ के आवाज़ देने, अदे वो बोलना नहीं जानता, पर जिधरों आवाज़ सुनाई देती उधर वेखण लग जाता। इधरों आवाज़ मारी एकदम सिर घुमा के इधर वेखदा, सुन सुन के समझन लग जाता है। तो समझ तो बाद फिर एक दिन इहो जिहा समा आउंदा बोलण भी लग जाता है। उस तो बाद फिर इहो जिहा समा आउंदा समझाउण भी लग जाता है। इस प्रकार सुरत की गल गए, सब तो पहला सुरत सुनती गई, कई दिनों के बाद जाके फिर ये समझन लग जाती, उधर वेखण लग जाती है। फिर सुरत की वाहिगुरू नूं बोलण भी लग जाती है, बोलण भी लग जाती है। फिर समा आउंदा है जदों ये जागी कोई सुरत दूजियां सुरतां नूं भी जगाउण लग जाती है। महाराज ने आख्या गल सुनन तो ही चलती, सुन सुन वेखे, फिर इनू समझना सुनन वाला ही वेखदा, सुनन वाला ही। एक पासों आवाज़ पई, जिन्हें सुनी उन्हें उधर वेख्या भी आवाज़ कदरों आई, जिन्हें सुनी नहीं उन्हें नहीं वेख्या। हाँ ये चेता रखना, कई बंदे सुनी नूं अणसुनी जरूर कर देंगे, सुनी सी पर ना सुनिया वर्गी कर देते, उन्हें वेख्या ही नहीं। धन गुरु अमरदास महाराज जी साडे गिरदे दी तय तक इसे करके जाते हैं, सुन सुन वेखे। महाराज साहब ने आख्या सुनन वाले गुरु वाल वेखदे ने, ते जदों गुरु वाल वेख्या फिर गुरु ने कृपा करके शब्द मिलाए, उन्होंने अपने शब्द नाल मिला दिता, शब्द विच अभेद कर दिता, जोड़ दिता शब्द नाल। आख्या आवाज़ दे के पींदे विच मिल, फिर तेरा जन्म मरण कटिया जाएगा। फिर महाराज साहब जी कहते वड्डी वडियाई गुर सेवा ते पाए। ये ते सेवा का अर्थ लेना सिमरन। महाराज ने आख्या दुनिया अंदर बहुत वडियाइयां ने, पर मनुख सब तो वड्डी वडियाई जिहड़ी आ मनुख नूं सिमरन नाल ही मिलदी है, सिमरन नाल मिलदी आ। सिमरन तो बगैर किसी मनुख नूं वड्डी वडियाई नहीं प्राप्त हुंदी। वड्डी वडियाई जां बूझे नाओ, धन गुरु नानक महाराज ने आख्या वड्डी वडियाई तेरी तां वा जे तू नाम नूं अपने अंदरों बुझ लैना। वड्डी वडियाई जां सच अलाओ, महाराज ने आख्या तेरी वडियाई तां वड्डी गए जे तू अपने रसना विचों सच बोलदा है। सच का मतलब नाम जपदा है, नाम बोलदा है, ताकि तेरी वडियाई वड्डी। उंदा दुनिया दीयां वडियाइयां तां बहुत ने, पर रब दे घर दी वडियाई जिहड़ी कि महाराज ने आख्या वो सिमरन करके मिलदी आ। एडी वड्डी वडियाई मिल जाती। फिर ध्रुव वर्गिया नूं महाराज साहब ने आख्या वो अटल हो गए, जिन्होंने घर वालियां ने आख्या असीं मां ने पिता की गोद चों उठा दिता। साहिबां दा प्यारा बचन के वड्डी वडियाई गुर सेवा ते पाए। अखीर ते बचन आख्या नानक नाम रते हर नाम समाए। महाराज ने आख्या जिहड़े नाम विच रंगे गए ने, जिन्हां दी आत्मा नूं नाम दा रंग चढ़ गया है, जिन्हां दे हिरदे ने नाम दे रंग नूं माणिया गया। साहिब जी कहंदे नाम विच रंगे होए ही नाम विच समाउंदे ने। नाम जपण वाले ही नामी विच अभेद हुंदे। नाम जपण वाले ही परमात्मा दे घर दा आनंद माणदे ने। नाम जपण तो बगैर ये गल बिल्कुल नहीं बनदी। नाम जपण तो बगैर साडी आत्मा परम आत्मा दे देश विच नहीं पहुंच सकदी।
उस देश विच जाना है तो उनकी प्रवानगी लैनी पैगी। आपां दुनियावी तौर पर भी किसी दूजे मुल्क अंदर जाना होवे ते जिहड़ियां दुनियावी फार्मैलिटियां ने पूरियां करनियां पैंदियां ने। फिर उन्होंने देश के कोलों जाके आग्या लैनी पैंदी, फिर अगला आग्या देंदा है कि तू आ सकना, फिर जाईदा है। परमात्मा के देश जाने वास्ते भी कोई नियम ने। वो सब तो बड़ा नियम है नाम जपना। नाम जपण वाला कि उनके देश का आनंद माणदा, उनके देश का खुलारा माणदा। इस करके गुरमुखो अपनी जिंदगी में नाम का अभ्यास जरूर करया करो। सवेरे अमृत वेले जागण का अभ्यास बनाओ, जागो जरूर। सुते भी असी रहने, सौण दे नाल कुछ नहीं मिलना। जिन्हें जिन्हें अपने कोल उम्र लंघ गई, आप बहुत सौ के वेख लिया जी। नींद गेदा दी जी जिन्हों जिन्ना मर्जी बदा लगे। उन जदों बंदा 30 तो लंघदा है तो मैनू इदा महसूस होने लग पे, हुण असीं भी लंघ गए 30 तो, इदा महसूस होने लग पे भी जिवें 5 घंटे 4.5 5 सौ लईए तो हुण पूरी हो जाती नहीं। पहला ज़्यादा, हुण इत्थे आके ते मैनू इदा लगता है भी जिवें 40 तो लंघांगे, जे रब ने उम्र दित्ती फिर ते 2-2.5 ने गल बनेगी। पर जे असीं सुत्ते ही रहिए फिर नहीं गल बननी। अंदर की अवस्था की तां गल बननी है जे निंद्रा चो जागांगे, वाहिगुरू जी का सिमरन करांगे, बंदगी दे नाल ही रब दे घर दा जिहड़ी ताकत है वो सानूं प्राप्त होनी है। इस करके आपां बंदगी वाले पासे जरूर जुड़ो, नाम सिमरन का अभ्यास करो, गुरमुखताई नाल जुड़ो। जिन्ना वध अमृत वेला सांभ लो उन्नी चंगी गल है, क्योंकि अद्धी रात तो बाद ना टका हो जाता है। 11:30 12 12:30 बजे तक तो बाद एन टका हो जाता, एकाग्रता। तो आप जतन करिए भी इन्ने साल लंघ गए, हुण कोई पता नहीं किहड़े वेले बाजी मूदी बाज जानी है, इधर नूं पैर फिसल जाना है। इस करके नाम का अभ्यास करिए, जिन्ना जप लावांगे उन्ना लाभ अगे, उन्ना फायदा अगे, उन्ना भला अगे। सो इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान कर लैणियां। होइयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां दी खिमा बख्शनी सतगुरु महाराज दियां दा धन्नवाद अगे, जिन्हां तरस करके अपने दर घर दे वचन आप करवाए। दिल दियां गहराइयां चों गुरु की संगत का धन्नवाद। आप जी ने बड़े अदब दे नाल गुरु घर दे वचनां नूं सरवण कीता कि सारियां संगतां दा हार्दिक तौर ते स्वागत गुरु घर वल्लों जी आयां नूं। आओ गुर संगत जी कुछ मिनट आपां सिमरन करिए, फिर उस तो बाद समाप्ति है। वागे गुरु वागे गुरु वागे गुरु वागे गुरु वागे गुरु वागे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।